Okay, all right. Good afternoon, everybody, and welcome to TGT PGT ADA 24/7. I'm Professor Aishwarya Puri, your guide for English literature. Welcome to my class. So, हम लोगों ने ये विक्टोरियन एज के कुछ राइटर्स की पोएम्स पढ़ना शुरू किया है एंड कल हमने इस क्वेश्चन पे एंड किया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइटिकल कलेक्शन का टाइटल इनमें से कौन सा नहीं है. Which of the following is not the title of the poetical collection by Robert Browning? The right answer was option 3. ड्रामेटिक रोमांसेस. ड्रामेटिक रोमांसेस नाम से इनका कोई भी टाइटल नहीं है. हाय पूजा, गुड इवनिंग, वेलकम. सो लेट्स बिगिन यहीं से. शुभजीत हाय, हाय अंजलि. सो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. रॉबर्ट ब्राउनिंग पॉपुलराइज द जॉनरा ऑफ एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कन्फेशनल पोइट्री, रियलिस्ट नॉवेल्स. बताइए. Robert Browning popularized the concept of dramatic monologues. Dramatic monologues are a kind of a lyrical poem in which there is a single speaker. Monologue से क्या मतलब है? Single speaker है poem में and he is narrating his tale to an assumed silent listener in the story. मतलब उस कहानी में उस वक्त कोई और भी मौजूद है और उसको हमारा स्पीकर अपनी कहानी सुना रहा है, डायरेक्टली रीडर को नहीं सुना रहा. बट वो जो अज्यूम लिसनर है, ही इज अ साइलेंट लिसनर, तो हमें कभी भी उसकी वॉइस सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये वर्क डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है. ड्रामेटिक क्यों है? बिकॉज ये दोनों एक ड्रामेटिक सिचुएशन में है और उस ड्रामेटिक एक्टिव सिचुएशन के बीच में से हमें ये नरेशन सुनने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर अपनी कहानी सुना रहा है जिसका वो खुद एक पार्ट है, इसलिए ये एक लिरिकल पोयम है, नैरेटिव पोयम नहीं है. अगर आपके मन में ये सवाल आए कि कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी नरेट कर रहा है, तो नैरेटिव पोयम हो गई. पर ये भी तो देखिए ना किसके पर्सपेक्टिव से और किसकी कहानी है. पर्सपेक्टिव भी स्पीकर का है, कहानी भी स्पीकर की है. ही हिमसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, इसलिए इट इज अ लिरिकल पोयम एंड नॉट अ नैरेटिव पोयम. It is slightly different from a dramatic lyric. In a dramatic lyric, the speaker of the poem is not the poet himself. Otherwise, in dramatic monologues, there is always you always have to make sure that the speaker and the poet, they are two separate people, two separate entities. However, in a dramatic lyric, the poet can be the speaker of the monologue. So that makes it a dramatic lyric. And dramatic monologue may another important point of differentiation is that it is through the monologue of the speaker that something complex is revealed about the speaker's psyche. That is a very important point because Robert Browning was very much interested in knowing the psychology of his characters. All right. All smiles talk together because ये बहुत ही फेमस पोएम है बाय ब्राउनिंग, माय लास्ट डचेस. एंड उसमें ड्यूक की ये स्टेटमेंट है दैट ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ही किल्ड हिज वाइफ इन जेलसी, because he killed his wife because she was having an extramarital affair. He sewed her lips together या फिर he broke her teeth. बताइए. हाँ जी शुभजीत, the answer of the first question will be dramatic idols. एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. No, Dramatic Idols is a collection by Robert Browning. This is a collection, Shubhajit. ठीक है? हाँ जी. तब तक the right answer is all smiles stop together because he killed his wife in jealousy. Absolutely correct. So in the poem, it is made sure the poet makes sure that जो speaker है वो अपनी complex psyche reveal करेंगे readers को, और हमें Duke of Ferrara की अब बात से समझ आ जाता है that he was a very शक्की मिजाज के थे वो काफी. He was very क्या कहते हैं word, suspicious of his wife and her intentions and her actions. So there is no clear-cut indication in the poem that she had actually cheated on him. He only suspected that she cheated on him and he was jealous of that. He was jealous about
her behavior and her actions towards other men, and hence he decides to kill her. In one long yellow string I wound dash times her little throat around and strangled her. पोएम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग ये? क्या आप लोग ये पोएम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? The right answer is Porphyria's Lover. Porphyria's Lover by Robert Browning, another dramatic monologue. And इसमें also we see an act of homicide and an act of killing. Very good, Shubhaji. And the right answer is option 3. ठीक है? In one long yellow string, I wound 3 times her little throat around and strangled her. Who knows but the world may end tonight is from which poem? रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस ये लाइन्स हैं उनकी पोएम से. ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. Who knows but the world may end tonight? My last touches. Porphyria's lover. The last ride together. Andrea del Sarto. Very good, Umesh Kumar. Absolutely correct. The last ride together. The Last Ride Together, the poem is written as a goodbye poem between two lovers. And again, this is a dramatic monologue. इसमें हमारे speaker, he is addressing his beloved who is present with him. So she is the silent assumed listener of the poem. The poem is based on the theme of carpe diem or seize the moment. कि ये लोग जो स्पीकर हैं जो हमारे लवर है वो अपनी बिलाविड को बोलते हैं दैट आफ्टर दिस वी आर नॉट गोइंग टू मीट एवर अगेन सो लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम दैट वी हैव टुगेदर. यहाँ पर वो बोलते हैं कि टुनाइट लेट अस डू व्हाटएवर वी वांट टू डू बिकॉज़ हु नोस बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट. हो सकता है कल दुनिया ही खत्म हो जाए और हम इस रिग्रेट में मर जाएं कि हमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया. So it's better that we do not think about the future, we do not think about tomorrow, and we do whatever we'd love to do today. Next question. The first dramatic monologue by Robert Browning is. As we all know, Robert Browning is considered to be the father of dramatic monologues in English literature. But which one was his first dramatic monologue? My last touches, Porphyria's Lover, Pauline, या Fra Lippi. Hi मिष्टी. अरे वाह मिष्टी बहुत ही बढ़िया. सारा क्लास देख ली तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा क्योंकि एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी. सो दैट्स क्वाइट गुड. उमेश फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी एग्जैक्टली नहीं है. मैंने आज ही अपने ऑफिस में मतलब मैंने आई टॉक टू सम ऑफ माय कॉलीग्स एंड मैंने समझने की कोशिश की ये सिचुएशन तो मैं और चेक कर लेती हूँ. मतलब कुछ बच्चे कल 25 बोल रहे थे और कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं शायद 30 को हो सकता है. ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक. तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक देयर इज नो पॉइंट इन इंडल्जिंग ऑल दीज रूमर मिल्स. हाँ जी. The right answer is Porphyria's Lover. Porphyria's Lover Robert Browning की पहली example of a dramatic monologue थी. The Pied Piper of Hamelin by Browning is set in the city of Vancouver, Canouver, Lincolnshire या Hanover. अच्छा चलो अभी बाकी की बातें प्लीज क्लास के बाद में करेंगे. अभी नहीं करेंगे. अभी हम पढ़ाई करेंगे बस. प्लीज पढ़ाई कर लीजिए. क्वेश्चंस को देखिए. क्वेश्चंस का आंसर करिए. The Pied Piper of Hamelin, this very famous poem by Robert Browning, इसमें किस सिटी का मेंशन है? वैंकूवर, कैनूवर, लिंकनशायर या हैनोवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, हैनोवर. Pied Piper of Hamelin में we see the character of this Pied Piper who's come from Hamelin, and he has this musical quality, this magical quality where he produces this music by his flute. और उस flute के music से he can do anything that he wants. किसी को भी enchant कर सकता है. किसी से वो कुछ भी करा सकता है. So that is what the poem is about.
Heaven's gate open to the rich at an easy rate as the needle's eye takes a dash in. Coin, treasure, camel, lion. This is a UGC नेट previous year question. ये पिछली पोएम से ही है. पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन की क्लोजिंग लाइंस है फेमस कि heaven's gate opens to the rich at an easy rate as the needle's eye takes a dash in. Coin, treasure, camel, lion. अभी मैं इस एक क्वेश्चन से आपसे दो तीन और अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? सो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ऑप्शन सी कैमल, छोटी सिंह, करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. कैमल. सो ये स्टेटमेंट में जो पाइड पाइपर है वो बिकॉज ही वांटेड हिज रिवॉर्ड from the people of Hanover because he drew the mice out of their city. He wanted his reward, but he wasn't awarded a reward. जिसकी वजह से वो उन सबके बच्चों को अपने साथ खींच के विलेज से बाहर ले जाता है. और पोएम की क्लोजिंग लाइंस में ये स्टेटमेंट है कि हेवन के गेट रिच लोगों के लिए उतने ही इजीली खुल जाते हैं जितना इजी है एक नीडल की आई से कैमल को निकालना. सो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज, मैं दो तीन आपसे सवाल पूछती हूँ. यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में कि जो कहना चाह रहे हैं उसकी जगह उल्टी चीज सॉर्ट ऑफ कही, उल्टी नहीं कही जा रही, बट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सार्कास्टिक कमेंट यूज किया जा रहा है ना, सार्काज्म का यूज किया जा रहा है इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए. उसके अलावा आपको इस स्टेटमेंट में और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है? उसके अलावा आपको कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली आप इसे आंसर कर पाएंगे. पैरिटी तो पूजा किसी चीज की होती है. पैरिटी तो आपने एक कोई सब्जेक्ट मैटर उठाया, कोई फॉर्म उठाया, आपने उसको सैटायराइज किया, आपने उस पे एक मजाक बना दिया, है ना, उसका स्पूफ बना दिया, वो पैरिटी होती है. यहाँ तो किसी ऐसी किसी चीज को का स्पूफ नहीं बनाया ना यहाँ पे. शुभजीत करेक्ट आंसर. शुभजीत करेक्ट आंसर. आप देखेंगे सबसे इजी था यार, सबसे इजी था, देखो आइडेंटिफाई करना. opens to the rich at an easy rate as the needle's eye. So like या as का यूज किया गया है कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, तो बड़ा सिंपल सा आंसर था सिमिली का. तो मैंने तभी पहले क्लियर कर दिया था कि आप लोग हाइपरबली ना बोलो. मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सार्काज्म का यूज है, सार्कास्टिक कमेंट यहाँ पे दिया गया है कि रिच लोगों के लिए भगवान के दरवाजे उतनी ही आसानी से खुलते हैं जितनी आसानी से एक नीडल के आई से आप एक कैमल को क्रॉस कर सकते हो. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सार्काज्म है, इस ताकि आप पैरोडी को साइड में रख दो, उसको हटा दो, उस पॉइंट को, हाइपरबोली को हटा दो. आप देखेंगे सबसे इजी और सबसे डायरेक्ट आंसर यहाँ बन रहा है, कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है बाय यूजिंग एज, और अगर एज ए लाइक का यूज होता है तो सिमिली होता है. सो सिमिली इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Just for a handful of silver he lost us. Who is he? Robert Browning, Lord Alfred Tennyson, Napoleon Bonaparte, William Wordsworth. किसको कहा जा रहा है कि just for a handful of silver he left us? The right answer is option Shiva incorrect, Anjali incorrect, Chandni incorrect, Shubhajit incorrect, Deep Sandhu correct answer. करेक्ट आंसर. यहाँ पर बात, क्वेश्चन ये नहीं है लिखा किसने है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं किसके बारे में कहा जा रहा है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जा रहा है. किसने कहा है? हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइंस? रॉबर्ट ब्राउनिंग. किस पोएम में कहा है? द लॉस्ट लीडर. सो होता ऐसा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज द
leading premier voice of revolution and rebellion of the Romantic Age. He's the creator, he's the beginner of the Romantic Age. And later on, he turns towards conservatism. He turns towards Tory politics. He becomes a right-wing politician, and he also gains a political position because of it, a government job because of it. सो ये जितने भी राइटर्स थे जो पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को अपना आइडल मानते थे, अपने इंस्पिरेशन मानते थे, वो अब बोलेंगे कि थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना पर्पस छोड़ दिया। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कह रहे हैं इन द पोएम द लॉस्ट लीडर। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, यहाँ पे अगर मैं सिल्वर वर्ड पे फोकस करूं, यहाँ पे अगर मैं सिल्वर वर्ड पे फोकस करूं, so which figure of speech is used here? Options: metaphor, metonymy, synecdoche, and fourth is apostrophe. बताइए। Shubhajit, correct answer. Nomad Shraddha, correct answer. It is metonymy. Silver word here is associated with richness, money, है ना? सिल्वर वर्ड, क्योंकि सिल्वर के कॉइन्स बनते थे ना, सिल्वर से कॉइन्स बनते थे, तो क्लोजली रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए इट इज मेटोनीमी एंड नॉट सिंपली मेटाफॉर। मेटाफॉर तो इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अनलाइक एंड उनके बीच में कंपैरिजन होता है। सिल्वर से सिल्वर के कॉइन्स बनते थे उस टाइम पे, एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि पैसों के लिए वो हमें छोड़ के चले गए। तो समझ आए? समझ आया आप लोगों को? लॉजिक समझ आ गया ना? जितने लोग मेटाफर दे रहे हैं आंसर, मेटोनीमी क्यों है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। मेटाफर तो तब होता है जब ऐसी दो चीजों में कंपैरिजन ड्रॉ होता है जो क्या कहते हैं, पहली बात तो यहाँ दो चीजें है ही नहीं, आप देखोगे यहाँ दो चीजें नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर दो चीजें हैं कहाँ पर मेटाफोर में, देयर इज अ टेन्योर एंड देयर इज अ व्हीकल। टेन्योर इज जिसका कंपैरिजन हो रहा है, व्हीकल इज जिससे हो रहा है। तो यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है? कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ, समझ रहे हैं आप? देयर आर नो टू थिंग्स, देयर इज नो टेन्योर एंड व्हीकल। मैंने आपको बोला सिल्वर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिल्वर को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सिल्वर एक वर्ड है जो यहाँ पर क्लोजली एसोसिएटेड है विद सिल्वर कॉइन्स, विद मनी, विद करेंसी, इसलिए सिल्वर कॉइन्स या करेंसी की जगह हमने सिल्वर ही लिख दिया। जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर बुक की जगह मैंने आई एम रीडिंग शेक्सपियर बोल दिया। गॉट इट? सो for a couple of silver, that means a couple of money or coins, whatever, he left us. So there's no comparison ना here, सिर्फ associated words को, closely associated words को replace कर दिया एक दूसरे के साथ। Got it? बिल्कुल। So I hope the answer is clear to everybody. I hope the answer is clear to everybody. ठीक है? Hi Saurabh, good evening. So this is the right answer. Fra Lipolipy is about the choice between art of real life versus art of ideal life, flesh versus soul, God versus Satan, both one and two. जी बताइए। Fra Lipolipy is a poem based on a medieval Italian painter who was commissioned to paint in a
in a Christian cathedral, in an old cathedral. He was supposed to paint the ceilings, and he wished to paint about the human body, the human life, the flesh, whereas he was asked to paint on the soul, the God, spiritual things, etc. So the poem and his dramatic monologue is about that conflict of choice between art of real life and art of the ideal world, the ideal life, the realm of God. It is about the contradictions between the flesh and the soul. So option A and option 2 both are correct. आपका right answer बनता है option B. ठीक है? Who is the faultless painter according to Browning? Browning ने अपनी एक पोयम में अपने एक पेंटर को faultless painter बुलाया है. किसे कहा था? Fra Lippi, Michelangelo, Andrea del Sarto या Raphael? प्रीति, बिहार स्टेट की अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है बेटा. जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होती है मैं आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस लगा दूंगी. जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज कर दूंगी फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस. ठीक है? जी, द राइट आंसर इज एंड्रिया डेल सार्टो. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily dash. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. This, I think, is a UGC net previous year question. So, again, this is a statement from my last Duchess, and what you have to fill in the blank. She was too easily what? Joyed, impressed, depressed, yeah, excited. All right, the right answer is impressed. Good, good, Shobhaji. Great. Nay, we'll go together down, sir. Notice dash, though, taming a seahorse, thought a rarity, which Claus of Innsbruck cast in bronze for me. This is again a UGC net previous year question. ये सारे देखेंगे आप क्वेश्चंस प्रॉपर नाउन के क्वेश्चंस हैं. जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है. ये ऐसा एक क्वेश्चन बना है जो आप जब पोएम पढ़ेंगे तो इस पे आपका अलग से फोकस जाएगा. तो कोटेशन वहीं से बनता है पेपर में जहाँ पे फोकस जाता है जो प्रॉपर नाउन का होता है. ठीक है? So this is again when the Duke is taking the marriage counselor, the mediator down back again, and वो कह रहे हैं अच्छा वो देखो वो क्लॉज ऑफ इन्सबर्ग बहुत ही फेमस एक आर्किटेक्ट वो है सॉरी स्कल्प्टर है. उन्होंने ब्रॉन्ज का कास्ट यूज करके मेरे लिए ये बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया है, ये मूर्ति बनाई है. किसको बोल रहे हैं, किसकी मूर्ति बनाई थी? नेपच्यून की, मर्क्यूरी की, वीनस की या जुपिटर की? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, Neptune ki. Neptune, who was the god of sea, and he is taming a seahorse. Okay, clear? Name the painter who made the Duchess's painting. Again, a UGC net previous year question. My last Duchess poem में Duchess की painting किसने बनाई थी? Giovanni Bellini, Giorgione, Sandro Botticelli या Fra Pandolf? Very good, very good. The right answer is option 4, Fra Pandolf. That is the right answer. The Battle of Marathon by Elizabeth Barrett is about. Elizabeth Barrett Browning की ये work है. The Battle of Marathon. What is it about? Battle in which the Greeks defeated the Athenians. Battle in which the Athenians defeated the Greeks. About the history of marathons in Greek society. The battle between good and evil. जी बताइए.
एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग की ये वर्क है, पोएम है द बैटल ऑफ मैराथन. What is it about? The right answer is option 2. It is a battle in which the Athenians defeated Greeks. So Greek mythology की ये story है जो उन्होंने use की है अपनी इस poem में, जिसमें Athenians, people from Athens, they defeat the. The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning uses the allegory of dash to signify innocence and purity. Elizabeth Barrett Browning की इस poem में she uses the allegory of dash to signify innocence and purity. Clouds, newly bloomed buds, young lamb, Jesus Christ. हाँ जी. The right answer is option 3, young lamb. याद रखिए मैंने आप लोगों से अभी 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था जब हम रोमांटिक पोइट्री पढ़ रहे थे. विलियम ब्लेक की पोएम्स में भी जब वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखते हैं उसमें ही यूजेस द सिंबल ऑफ लैम्ब एज अ साइन ऑफ innocence. Reason क्या है इसका? Lamb has from times immemorial been used as a sign of innocence because Bible में इसका ऐसे ही mention है. बाइबल में जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न अमंग द शेपर्ड्स की कम्युनिटी में उनका बर्थ हुआ है. एंड कई ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं जहाँ पर जब उनका बर्थ हुआ था तो वो लैम्स के साथ घूमते थे, लैम्स को उन्होंने गोद में उठाया हुआ है. सो लैम्स के साथ जीसस क्राइस्ट का इनोसेंस, उनकी प्योरिटी एसोसिएटेड है, इसलिए दिस इज द राइट आंसर. Aurora Lay by Browning is a dramatic monologue, lyrical poem, short story, novel in verse. जी फटाफट बताइए. The right answer is it is a novel in verse. Aurora Lay by Elizabeth Barrett Browning is a novel in verse. It is a very long poem written in the form of a novel. It is a very long narrative poem जो novel की तरह पढ़ी जाती है. And Aurora Lay की story is highly autobiographical, semi-autobiographical, based on her own life. Where Aurora Lay, who is she's a very studious girl, and although denied educational rights in the Victorian society, she self-educates herself through her father's library. And later on, she keeps the wish to become a poet. Okay? Very good, Pooja. 11,000 lines long, divided in 9 books. Absolutely correct. Who called this poem the greatest long poem of the 19th century? Last question of the day. इस पोएम को ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोएम ऑफ द 19th सेंचुरी कौन बुलाते हैं? जॉन रस्किन, टी.एस. एलियट, एफ.आर. ल्यूइस या एज़रा पाउंड? बताइए. जी, very good, very good. And the right answer is John Ruskin. John Ruskin is the right answer. चलिए. So on this note, we'll end the session here. Thank you so much, everybody, मेरे साथ जुड़ने के लिए session में. And if you like the session, hit the like button.
बिहार स्टेट की डेट्स कंफर्म हो जाने पे मैं अपने पेड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्लासेस प्लान करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पक्का पक्का करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, डेट आ जाने दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो अडा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर यू कैन जॉइन आवर बैच, यू कैन यूज कोड Y542 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, एंड आई विल सी यू इन माय क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल समथिंग टाइम।